دو سوال جو بڑے ریلیونٹ اٹھائے ہیں بخش شیر نے، اس کے جواب دے کر تقریر کو ختم کروں گا۔ خصوصاً شکریہ سفارت پاکستان کا ادا کرتا ہوں۔ اس موقع پر شیخ عبدالشکور صاحب آپ سے بھی درخواست ہے اور ایک مدبانہ گزارش ہے کہ یہاں کی جو حالات ہیں، یہاں کے جس طرح آپ لوگ ابھی کام کر رہے ہیں، خاص کر آؤٹ پاس کے حوالے سے یہاں لوگوں کو کافی تکلیف ہے، جس کا گروپ لگا ہوا ہے وہ لوگ تو جا رہے ہیں، لیکن اگر اس کا خروج ترحیل کے بجائے سفارت کی ٹیم یا مندوب چلے جائیں گے وہاں پہ لگائیں گے، کیونکہ پہلے جن لوگوں نے اقامہ جمع کیا جو ختم اقامے تھے اس میں کافی لوگوں کا تو کاغذات آئی ہے اور جس کا باقی ہے اس میں بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لیکن سفارت پاکستان کا میں بہت مشکور ہوں، سفیر پاکستان کا سعود صاحب کا خصوصاً اور شکور صاحب کا، دن رات ہم نے اس کو کال کی، اس کو تکلیف دیا، میں سے معذرت خواہ بھی ہوں، لیکن یہ اس کا حق ہے کہ اس سخت حالات میں اس نے اپنے پاکستانی کے ساتھ دیا اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح حالاتوں میں بھی اپنا وقت بھی دیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ اس طرح حالات پورا دنیا میں دوبارہ آئیں گے، اللہ نہ کرے کہ اس طرح حالات آئے جائیں گے۔ میں اپنے بہنوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، بازار روہیل اور اس کی پوری ٹیم کا، کہ کرونا کے حالات میں اس نے جتنا ریاض کی فیملی سے اس کو راشن تسلیم کیا، ریاض کی ٹیم کا بھی بہت بہت شکریہ، اور جن دوستوں کو جن بہنوں کو ایوارڈ ملا سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ تحریک انصاف کا پروگرام نہیں، یہ پورا پاکستان کا پروگرام ہے، اور ریاض میں جتنا پروگرام ہم نے بنائے پہلے بھی، کیونکہ موجودہ صورتحال پر 50 لوگوں کا دعوت تھا، 50 لوگوں کا جگہ تھا، اس حساب سے یہ پروگرام ہوا، لیکن اس پر بھی میں اپنی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور خصوصاً شکریہ سفارت پاکستان کا ادا کرتا ہوں۔ اس موقع پر شیخ عبدالشکور صاحب آپ سے بھی درخواست ہے اور ایک مدبانہ گزارش ہے کہ یہاں کی جو حالات ہیں، یہاں کے جس طرح آپ لوگ ابھی کام کر رہے ہیں، خاص کر آؤٹ پاس کے حوالے سے یہاں لوگوں کو کافی تکلیف ہے، جس کا گروپ لگا ہوا ہے وہ لوگ تو جا رہے ہیں، لیکن اگر اس کا خروج ترحیل کے بجائے سفارت کی ٹیم یا مندوب چلے جائیں گے وہاں پہ لگائیں گے، کیونکہ جس سے اس طرح پہلے سفارت کے ساتھ 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر پہ لوگ کھڑے تھے، اس حساب سے ترحیل کے سامنے میں 2 دن پہلے گیا تھا، وہاں 1000 لوگ 800 لوگ وہاں پہ موجود تھے، تو یہ اپنے ملک کی بدنامی ہے۔ اگر سفارت ٹیم وہاں پہ جائے گی، مندوب جائیں گے، جس طرح آؤٹ پاس دیں گے وہاں ترحیل سے اس کا خروج لگائیں گے تو انشاءاللہ اپنے ملک کا بدنامی بھی نہ ہوں گے اور اپنا ٹیم جو ہے نا وہ پاکستان چلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن سے پہلے جن لوگوں نے اقامہ جمع کیا جو ختم اقامے تھے اس میں کافی لوگوں کا تو کاغذات آئی ہے اور جس کا باقی ہے اس میں بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں بھی کافی لوگوں کا اقامہ ختم ہو گیا موجودہ صورتحال کی وجہ سے، اس میں بھی کوشش کریں کہ وہ مرحلات دوبارہ شروع ہو جائیں گی اور وہ لوگ پاکستان چلے جائیں گے اور وہ واپس آ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ تمام دوستوں کا، اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو اتفاق اور اتحاد میں رکھے۔ اللہ یہ پورا پاکستان کے کونے کے کا لوگ یہاں پہ موجود ہے، چاہے پنجاب سے ہو، دیر سے ہو، سوات سے ہو، لیکن سب سے پہلے اس جھنڈے کا قدر کرے گی، اس کے بعد تحریک انصاف کے جھنڈے کا قدر کرے گی۔ بہت شکریہ۔ ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل، آپ کو بلا جسے اندیش آئے زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ دل احمد شبرے صاحب، عقیل آرائی صاحب، فندل صاحب، عبداللہ خان، بخش شیر، سارے نام یاد ہے، وسیم اور سردار رزاق صاحب، کمیونٹی کے ممبرز، میڈیا کے احباب، بٹ صاحب اور خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب جیسے سردار رزاق صاحب نے فرمایا کہ سفیر محترم کی خاص ہدایات پہ میں ان کو سفارت کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ کے پروگرام میں آیا ہوں۔ آج 3-4 پروگرام تھے اور ایک تو پاکستانی مینگو فیسٹیول تھا تبھی بھی کمپاؤنڈ میں، وہاں سے سیدھا میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ سفیر صاحب ہم مصروف تھے اور 3-4 اور ایونٹ ہیں، اور میری طرف سے اور سفارت کی طرف سے، سفیر محترم کی طرف سے آپ کو اور پورے کے پورے موجود سامعین حضرات کو پاکستان کا 74واں جشن آزادی مبارک۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کا ایونٹ آج ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ارینج کیا ہے اور اتنا روبسٹ سارے کے سارے سیکشن آف سوسائٹی اس میں اکٹھے تھے، تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ 2 صورتوں میں، ایک تو ایونٹ بڑا زبردست پروکار اور اس میں آپ نے قدردانی کی ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے خدمت کی ہے، اور اللہ سب سے بڑا قدردان ہے، تو انشاءاللہ اس کا بڑا ریلیونس ہے۔ ایک جملہ میری نظر سے گزرا اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے، اس کا میں اردو ترجمہ کرتا ہوں کہ میں پاکستان میں نہیں رہتا لیکن پاکستان مجھ میں رہتا ہے۔ I don't live in Pakistan, but Pakistan lives in me۔
ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैं गुज़श्ता 4 साल से यहाँ खदमात सर अंजाम दे रहा हूँ और मैं पाकिस्तान में भी सिविल सर्विस से वाबस्ता हूँ गुज़श्ता 22 सालों से, और मैंने पाकिस्तान के कोने कोने में और दुनिया के काफ़ी ममालिक में काम किया है। मैं समझता हूँ कि तारकीन वतन जो है ना, वो लोकल देसी पाकिस्तानी से 100 गुना ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। ये वाकई असासा है हमारे मुल्क का, क्योंकि सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तानी है। सिंधी, पंजाबी, बलोची, पश्तून, कश्मीरी बाद में वो पहले पाकिस्तानी है, और यही एम्बेसडर होने की शनाख्त है। जब हम मैंने जद्दा की कम्युनिटी भी देखी है अकील साहब माजरत के साथ, मेरा तजुर्बा जद्दा की कम्युनिटी के मुकाबले में मैं गीबत नहीं करूँगा, लेकिन रियाद जैसी कम्युनिटी मैं नहीं समझता कि पूरी सऊदी में। चंद सवाल बख्श साहब ने भी उठाए, लेकिन मैं ज़रूरी है क्योंकि सफारी की तरफ से मैं आपको ज़रूर कुछ चीज़ ऐसी बताना चाहूँगा जो आप तवक्का करते हैं। जैसे अभी अकील साहब, ये मुल्क कितनी कदर व कीमत का हामिल है, ये हरा पासपोर्ट कितनी कदर व कीमत का हामिल है। मैंने किसी बंदे से पूछा, थोड़ी इनफॉर्मल गुफ्तगू करता हूँ कि यार सफारतकार किस मुल्क के अच्छे होते हैं, इंडिया के अच्छे होते हैं या पाकिस्तान के अच्छे होते हैं, पूरी दुनिया में। उसने कहा कि सफारतकार कहीं भी अच्छे बुरे नहीं होते हैं, मुल्क की ताकत सफारतकार को ताकत देती। अगर मुल्क के तौर पर मजबूत है तो फिर सफारतकार भी मजबूत है, उसके पाकिस्तानी होने की भी ज़्यादा इज्जत है। इसी पाकिस्तानी की सबसे ज़्यादा इज्जत थी 60-70 में। अब दोबारा हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बहाल हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला आपके तवस्सुल से इंशाअल्लाह पाकिस्तान को जिस राह पे हमने गामजन करवाया है, और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हम बहुत उस करीब जल्द उस मंजिल पे पहुंचेंगे जिसमें हम अपना सर जो है फ़ख्र से बुलंद करके कह सकते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। और पाकिस्तानी होने का जो ताल्लुक और बॉन्ड है, अल्लाह ताला इसी के साथ और ईमान के साथ हमारा खात्मा करे। पाकिस्तानी के अलावा कोई और नाम नहीं है, हमारा एक ही रिलेशनशिप है, वो पाकिस्तान है। लेकिन रियाद की कम्युनिटी ने जिस तरह काम किया, नो डाउट, जैसे सरदार रज़ाक साहब ने कहा कि हम सारे लोगों को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि 1 मिनट में जिस बंदे के पास 20 कॉलें आ रही हैं, तो किसी भी आईफोन या एंड्रॉयड फ़ोन में 60 या 80 कॉलों के मिस कॉल का रिकॉर्ड रहता है। इसका मतलब है कि अगर 20 मिनट में मैंने कॉल अटेंड नहीं की तो बंदे की कॉल मिस हो गई, और अल्टीमेटली दोबारा मुझे पता भी नहीं चलेगा उसने कॉल की भी है नहीं की है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, जगह से लोग आए हैं इस बात की गवाही देंगे, आजकल इनके यहाँ सीजी बड़े ज़बरदस्त हैं माशाल्लाह, तो इनके ताल्लुकात भी अच्छे हैं। कल इन्होंने बड़ा इवेंट भी ज़बरदस्त किया है, वो भी बड़ा। लेकिन मैं आपको वकील साहब समझा दूँ, रियाद के एयरपोर्ट से 1.5 महीने में 300 डेड बॉडीज़ का जाना, ये सिर्फ कम्युनिटी और सफारे की मरहून मिन्नत है, ये मुमकिन नहीं है। दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट से 300 डेड बॉडीज़ नहीं गई, ठीक है, और दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट से 80 से ज़्यादा कोविड बॉडीज़ नहीं गई। इस वक्त जद्दा से सिर्फ 2 गई हैं, दमाम से 2। पूरे किंगडम में रियाद से 76 कोविड डेड बॉडीज़ जाना, उसके लिए सारे के सारे प्रोसेस को तकमील करना। और मैं सलाम पेश करता हूँ उमराव खान को, वक्त को, शबरेज़ को, इन सारे लोगों ने मिलकर काम किया। अगर ये एनेबलिंग फैक्टर्स ना होते तो सफारी के पास इतना स्टाफ नहीं होता। हमने एक बंदे को मैनेज किया, मार्चुरी में बैठे, एक बंदे को कहा कि जी जल्दी एम्बुलेंस लाश उठा दे, लेकिन इस लाश को पाकिस्तान तक पहुँचाना सारे प्रोटोकॉल के साथ, और यहाँ पर रोज़ाना 20 से 25 डेड बॉडीज़ हों, जिंदों का काम अलग है। सिर्फ मैं मरे हुए की बात करता हूँ, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए, वो शहादत के दर्जे पे। लेकिन ये सिर्फ ज़रूरी बताना समझता हूँ कि चैलेंज बहुत बड़ा था, और अल्लाह तबारक ताला ने अब जो बड़े रेलेवेंट उठाए हैं बख्शेर ने, उसके जवाब देकर तकरीर को ख़त्म करूँगा। पहली बात यह है कि हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पर आजकल एम्बेसी में 1200 लोग आ रहे हैं, और ये ज़रूर अपने डेरों पे समझा दें कि 1200 लोगों का एक ही वक्त में एम्बेसी में दाखिल होना कोविड कवानीन के तहत मुमकिन नहीं है। जैसे आपने बावजूद चाहत के 50 लोगों को बुलवा सकें, सफार में भी यही कानून लागू कि 50 बंदे ही अंदर रहेंगे, काम होगा। तो धूप से बचाने के लिए हमने छतरियाँ भी मुहैया की हैं, जो लाइन में खड़े होते हैं लोग, पानी की बोतल्स भी दिए, फिर भी 200 से 250 लोगों की लाइन लगती है। हमने 2 चीज़ें की हैं कि टोकन की कोई ज़रूरत नहीं है, जो बंदा आएगा इवन 2 बजे भी आएगा उसको हम एंटरटेन ज़रूर करेंगे, वापस नहीं करें। तो पहली बात हुई है। उसके बाद चांसरी हाल में हमने वो सारे कारपेट रिमूव करके डिटोल से साफ करके 150 बंदों का वेटिंग लाउंज बनाया है। तो 150 बंदे एक ही गो में अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर एक अफसर की ड्यूटी लगती है सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। वो क्राउड को मैनेज करता है कि 50 पासपोर्ट में भेजने हैं, 20 नादरा में भेजने हैं, 2 को पासपोर्ट एक्सटेंशन, 2 को आउट पास बनाना है। तो क्राउड मैनेजमेंट हम इस तरह कर रहे हैं। उसमें
इकामे ख़त्म वाले जिन बंदों ने जनवरी में हमारे पास कागज़ जमा करवाए थे वो तकरीबन 5000 लोग थे। उनका डेटा हमने मकतब अमल में शेयर किया है। ये आपकी आगाही के लिए ज़रूरी समझता हूँ कि 2 कैटेगरीज़ हैं और ये दोबारा सारे के सारे कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव हैं। हर बंदे के कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल, हर बंदे के ताबे कुछ लोग हैं, उनको समझा दें तबलीग है। पहली बात है कि कुछ लोग मतलूब हैं, कुछ हरूब हैं और कुछ लोग जिनका इकामा ख़त्म। ये 3 कैटेगरीज हैं। मतलूब का मतलब ये है कि या तो उसके ऊपर कोई कर्जा है, फाइनेंशियल किसी केस में इन्वॉल्व है, जब तक वो कर्जा नहीं उतरेगा या केस ख़त्म नहीं होगा ये बंदा नहीं जा सकेगा, चाहे कोई भी अफू एमनेस्टी आ जाए। तो मतलूब की कैटेगरी को अलग किया जाए। जो मतलूब है उसको शुरते खाने से रब्ता करना पड़ेगा, केस ख़त्म होगा, अगर जुर्माना है तो अदा करना पड़ेगा, उसके बाद ये जा सकता है। हरूब जिसको हम कहते हैं एब्सकॉन्डर फ्रॉम वर्क, काम से भागा हुआ, उस बंदे को पहले कानून ये था कि तहरील वाले उसको जेल में डालते थे, डिपोर्टेशन सेल में डालते थे, 15 दिन डरते थे, कागज़ उसके मुकम्मल हो जाते थे, उसके बाद उसको अपने टिकट पे पाकिस्तान भेजते थे। अब तहरील में रखने की गुंजाइश भी नहीं है और सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट भी फ्री को नहीं चल रही। तो हमने इस पर मीटिंग की और उन्होंने कहा कि जी अब एम्बेसी जो है इसमें फैसिलिटेट करे, अपने लोगों को टिकट वो अपनी लें, हम इनको जेल में नहीं डालेंगे लेकिन वो बाइज़्ज़त जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकेंगे क्योंकि डिपोर्टेड हैं। तो उनकी तरतीब यह है कि वो असल पासपोर्ट जिसमें मुद्दत बढ़ी हुई है या आउट पास बनवा के एम्बेसी में आ सकते हैं, रोज़ाना हम उनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं। और बिल्कुल इसी तरह हमने देखा है कि 2500-600 लोग रोज़ाना खजल ख्वार होकर वापस आते थे। तो हमने तहरीर वालों को कहा कि जी अब हमारे लोग आपके पास नहीं आएंगे, अब सफारा इनके कागज लेकर आपके पास आएंगे। तो ऐसे लोग जो हरूब वाले हैं, अगर उनके पास पासपोर्ट नहीं है या मुद्दत बढ़ी हुई नहीं है तो बढ़वा के आ जाएं। अगर आउट पास बनवाना है तो आउट पास बनवा के आ जाएं, लेकिन हमारे पास जब आएँ तो अपना सफरी दस्तावेज ज़रूर लेकर आएँ, टिकट फ़िलहाल ना लेकर आएँ, इकामा ज़रूर लेकर आएँ। अगर असल है तो असल ले आए, वरना कॉपी। हम उनको रजिस्टर करके उनका फ़ोन नंबर लेके अपने पास रखेंगे। हमारा मंदूब सफारा वाला चला जाएगा तहरील में, वहाँ पर उनका खरूज लगवा देगा। जैसे उनके सिस्टम में कोई और तलब नहीं होगी, खरूज लग जाएगा तो उसको फ़ोन चला जाएगा कि जी आपका खरूज लग रहा है लेकिन आपको टिकट लाना मस्त। तो टिकट लेकर आएगा और उसको खरूज के पेपर और पासपोर्ट हवाले कर दिया जाएगा और उसके बाद वो जा सकता है। और इस काम की स्टार्ट हमने जुमेरात से कर दी है और 28 खरूज हम लगा चुके हैं एक ही दिन में। जिन लोगों के इकामे ख़त्म हैं, 5000 लोगों के फॉर्म हमारे पास थे, उनमें से 1500 लोगों के लेबर वाले कार्ड रिन्यू हो चुके हैं। ये बंदे भी जा सकते हैं, उनमें से काफ़ी गए भी हैं। बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास हैं उनको भी आप बता दें कि सफारे आने की ज़रूरत नहीं है। हम 1-2 दिन में उनकी पूरी लिस्ट फेसबुक पे लगा देंगे ताकि वो अपनी लिस्ट में नाम देख लें, अगर है तो फिर सफारा से कॉन्टेक्ट करें और वो जा सकते हैं और नए वीज़ा पे आ भी सकते हैं। जो बाकी 3000 हैं जिनके अभी कामे नहीं हुए, जिनके लेबर कार्ड नहीं बने, उनकी हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह अगले 15-20 दिनों में उनके भी लग जाए, लेबर कार्ड बन जाएं। जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा, बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, तो हम सितंबर के फर्स्ट वीक में नए लोगों की दरख्वास्त वसूल करना शुरू करेंगे जिनके इकामे ख़त्म हैं। इकामे ख़त्म के साथ दोस्तों और साथियों एक चीज़ जुड़ी हुई है, कोई अफवाह नहीं है, लेकिन जिन लोगों के इकामे ख़त्म हैं वो लोग आपको पता है कि बगैर रसूम अदा किए नहीं जा सकते। तो 2 सालों की मुलाकातों के बाद ये तय पाया है सऊदी अथॉरिटीज़ के साथ कि ये खुद नहीं जाएंगे, सफारा इनके कागज़ और कफील की जिम्मेदारियां सारी नाम में लिख कर उनको जमा करवाएंगे। ये इनकी सारी एक्सपायर्ड इकामत की फ़ीस कफील के ज़िम्मे डालेंगे सिस्टम, और इनको जाने दें। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है मेरे ख्याल में 2.5 साल। तो इंशाल्लाह ये दोनों काम जो रियाद में हो रहे हैं, मैं अगेन गारंटी से कहता हूँ कि ये शायद ये पहला सफारा होगा जो हरूब वालों के भी पासपोर्ट लेकर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तहरीर में जाएगा, और इकामे वाले के भी इंशाल्लाह लगा के आपको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक एम्बेसी पे, वेब पेज पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और बाकी भी बिल्कुल मुमकिन है कि हम इंसान हैं। एक बात मैं आपको आखिर में जरूर गुजारिश कर दूँ, अगर आप बोर ना लें, जिस तरह हमारी अच्छाइयाँ आपके जहन में हैं तो हमारी कोताहियों के साथ हमें कबूल करें और हमारा साथ दें। इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।